امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پر روس سے تیل خریدنے پر اضافی ٹیرف کی دھمکی دے دی۔ کہا اگلے 24 گھنٹوں میں بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لینے والا ملک ہے۔ اگر توانائی کی قیمتیں کم ہو جائیں تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین میں لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے۔ بھارت روس کو ایندھن دے رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ اگر یورپی یونین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو اس پر بھی اضافی ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔ روس نے بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کی امریکی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ روسی حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم ایسے بیانات کو درست نہیں سمجھتے۔ کس سے تجارت کرنی ہے، کس سے نہیں، اس کا فیصلہ بھارت خود کرے گا۔ کسی تیسرے ملک کو اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستانی جنگجو روس کے لیے یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ یوکرینی صدر کا دعویٰ، کہا شمال مشرقی یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ لڑنے والوں میں پاکستان، چین اور افریقی ممالک کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ ایکس پر اپنے بیان میں مزید لکھا کہ ہم نے محاذ پر موجود کمانڈر سے وفاقیت کے دفاع اور جنگ کی صورتحال پر بات کی۔ ہمارے سپاہیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس محاذ پر چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور کچھ افریقی ممالک کے کرائے کے جنگجو شامل ہیں۔ ہم اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے یوکرین جنگ میں مداخلت کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، یوکرین کی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی اور سینیٹ قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 9 ارکان کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق نااہل ہونے والوں میں صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل، رائے حیدر علی، جنید افضل شاہی، رائے حسن مرتضیٰ، انصر اقبال سمیت 9 ارکان شامل۔ ارکان کی نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کی 11 نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی مقدمات میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کو 8 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس فرح جمشید کا عمر ایوب کو 8 اگست تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، ہم اپیل کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں گرفتاری کا ڈر ہے۔ عدالت نے کہا، درخواست گزار عدالت کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہیں، ہم صرف ریلیف دے رہے ہیں۔ اپیل دائر کریں لیکن وارنٹ تو سیٹ اسائیڈ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، پنجاب پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما ریحانہ ڈار سمیت 6 اراکین اسمبلی کو حراست میں لے لیا گیا۔ پکڑے گئے ارکان اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی بھی شامل۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا، جس طرح اسمبلی چلائی جا رہی ہے یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر بڑا مظاہرہ نہ ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی چکری انٹرچینج سے آگے نہ جا سکے۔ پارٹی رہنماؤں کی اڈیالہ جیل کے قریب مظاہرہ کرنے کی کال بے سود ثابت ہوئی۔ صرف سینیٹر ہمایوں محمد سمیت 2 ایم این اے اڈیالہ کے قریب پہنچے۔ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ اور محمود خان اچکزئی کو بھی اڈیالہ روڈ کے قریب روک دیا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی دشمن ملک نے اتنی لابنگ نہیں کی جتنی پی ٹی آئی نے کی۔ کنفیوژن اور تقسیم پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ احتجاج کریں، 100 بار کریں، ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا، پھپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی، اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے؟ مجھے آج کے دن تک بانی کے بچوں کے نائکوپ یا ویزے کا ٹریکنگ نمبر نہیں دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مجمع اکٹھا ہو اور یہاں سے اڈیالہ جیل یا کسی جگہ پر حملہ کرے۔
हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो जाके बानी से जेल में बात करे, हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं। एहतजाज होता है तो डर जाते हैं। एहतजाज की कॉल थी, लगता है आवाम से ज़्यादा पुलिस सड़कों पर थी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बच्चों के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था वो पाकिस्तान आए तो गिरफ्तार होंगे। बानी के बच्चे आना चाहते हैं, बच्चों की वीज़ा ट्रैकिंग नंबर हमारे पास मौजूद हैं। बानी पीटीआई को आज 2 साल जेल में पूरे हो गए हैं। ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने के बजाय लाखों कारकुन दिखाओ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तंज़िया रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुझे दिली हमदर्दी है। आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोड का क्लिप बनाना पड़ रहा है और मजे की बात है कि इसको तारीखी रैली भी कह रही हैं। वैसे आवाम साइडों से रास्ता निकाल कर उनको क्रॉस कर रही हैं। बहन ट्रैफिक रोक कर ही वीडियोस बना लें। पीटीआई गली कूचों तक महदूद होकर रह गई, अब इनकी किसी तहरीक में जान नहीं होगी। वज़ीर आला केटी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर रद्द अमल। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर कहा, वज़ीर आला रिंग रोड से रैली शुरू करके किला बाला हिसार जाएंगे और वापस उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद घर चले जाएंगे। वज़ीर आला के जलसे जुलूसों की हैसियत नहीं रही। माजी में हमें भी जलसे जुलूसों से रोका गया, हम करते रहे, कोई इंतशार पैदा करते थे। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के तनाजुर में जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, पाबंदी 4 से 10 अगस्त तक 7 दिन के लिए लगाई गई। दफ़ा 144 के तहत रावलपिंडी में सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों, धरनों, मुजाहरों और जलसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फर्रुख जमशेद ने दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने स्पीकर सूबाई असम्बली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का शेड्यूल तलब कर लिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में 2 करारदातें मंजूर। पाकिस्तानी कौम मजलूम कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगी। पहली करारदाद वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेश की, जिसमें भारत की मुतासिबाना इक़दाम की मजम्मत की गई। दूसरी करारदाद शाजिया मरी ने अंग्रेज़ी ज़बान में पेश की। दोनों करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इज्तिमा से खिताब बोले, भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी बैनुल अक़वामी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा ज़्यादा देर नहीं रह सकता। आज का दिन तारीख़ के स्याह तरीन दिनों में गिना जाएगा। कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की हर तरह से हिमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल ने जिस तरह से मार का सर अंजाम दिया वो दुनिया में याद रखा जाएगा। भारत को अस्करी और सिफारती सतह पर मुंह की खाना पड़ी। मार्का हक की फतह से कश्मीरी बहन भाइयों का भी हौसला बुलंद हुआ। भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलियां निकाली गईं। भारत के गासिबाना इक़दामात के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया। 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है।
मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म हुए आज 6 साल मुकम्मल हो गए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से भी मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इरादा किया गया। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर के मामले पर पूरी सिंध असम्बली इख्तलाफात भुलाकर यक आवाज़ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर का मुकदमा लड़ा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल कहा, कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बिल्डोज किया और कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की। आलमी कम्यूनिटी पर फ़र्ज़ है कि अपनी करारदाद पर अमल करवाए। कश्मीर पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना गैर कानूनी इक़दाम है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। सिंध असम्बली के इजलास से मुराद अली शाह का खिताब, कहा भारत ने मज़लूम कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब की हुई है। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय इक़दाम नाकाबिल क़बूल हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हमेशा कश्मीरियों को मुक़द्दम रखा। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में 5 अगस्त 2019 सियाह-तरीन दिन है। आज कश्मीरियों को मालूम है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। कराची में मज़ार-ए-अक़ायद पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़ार-ए-अक़ायद पर आकर हमारी रूह को और ताकत मिलती है। क़ायद-ए-आज़म ने ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक़्फ़ किया। क़ायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान ऐवान में 2 अरकान की लड़ाई का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली ने दोनों फरीक़ैन के दरमियान सुलह करवाने का ऐलान कर दिया। कहा हसन रियाज और खालिद डोगर के दरमियान जो बात हुई वो काबिल मज़म्मत है। दोनों मेंबरान के दरमियान हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से किरदार अदा करूँगा। पंजाब असेंबली में जज्बातियत हो सकती है, कारकुन अवामी नुमाइंदे हैं, ज़ाती नौयत के वाक़यात होते रहते हैं। कौमी असम्बली से मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक इंसाफ के रुकन शेख वक़ास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बगैर छुट्टी के दरखास्त दिए गैर हाजिरी पर शेख वक़ास अकरम को वार्निंग और रुकनीत ख़त्म करने का इशारा दे दिया। कहा स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस में लाकर नशिस्त को खाली या करार दे सकता है। PTI के मलिक आमिर डोगर ने सवाल उठाया कि एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशिस्त से महरूम किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, पिछली असम्बली में मोहम्मद मियां सोमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट कैफेटेरिया के खाने से लाल बेग निकलने का सख्त नोटिस देते हुए इंतजामिया का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने इंतजामिया का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किए जाने की तस्दीक कर दी। अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ स्टाफ के लिए भी कैफेटेरिया का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। असेंबली हुकाम ने बताया खाने से कॉकरोच निकलने का वाक़या 10 दिन पुराना है। FBR इस्लाहात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा काबिल इत्मीनान है। इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास से खिताब, कहा इनकलाबी इस्लाहात की यकसा और मौसर निफाज को यकीनी बनाया जाए। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करेंगे। कस्टम क्लियरेंस की इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी से वक्त की बचत होती है। विफाक और सूबे बाहमी हम आहंगी और मरबूत हिकमत अमली से काम करें। विफाकी वज़ारत दाखिला ने POR कार्ड होल्डर गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। अफगान शहरियों की वतन वापसी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक POR कार्ड होल्डर की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। ये फैसला सिक्योरिटी खदशात और वसाइल न बढ़ते हुए दबाव को मद्देनजर रखते हुए आला सतह के इजलास में किया गया।
नादरा बॉर्डर टर्मिनल्स पर वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा। FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलत फराहम करेगा। पंजाब काबीना ने कम से कम तनख्वाह में इजाफे और सनती वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 130 निकाती एजेंडा मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी गई। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर लेबर कॉलोनी टेक्सिला में वर्कर्स को बजरिया कुरानदाजी फ्लैट्स मिलेंगे। हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरीज में वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाज दिया गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एडमिरल नवीद अशरफ के तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। पाक बहरिया के मलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर अहम इजलास। के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हायल यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम। मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम की रफ्तार मुतासर न हो। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर पर मुहित K4 मंसूबे की पाइपलाइन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वाटर बोर्ड जल्द अज जल्द K4 पाइपलाइन का काम मुकम्मल करे ताकि काम की रवानी मुतासर न हो। इस्लामाबाद में जमीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी स्टेट काउंसिल और जिला इंतजामिया पर बरहम। रिमाज दिए, मुझे सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं, कौन सा जज करप्ट है अच्छी तरह जानता हूँ। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं हुई। फाजिल जज ने मजीद कहा, अगली समाअत पर मेरे ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता तो डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अदालत में पेश हों। अदालत ने अपने हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज की नीलामी रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,43,037 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कराची के इलाके थाना शाह लतीफ के अंदर फायरिंग का वाकया। पुलिस ने गिरफ्तार SHO समेत 4 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान आतिफ और शाहजेब 2 अफराद को पकड़कर थाने लेकर आए थे। थाने में झगड़े के दौरान मुलजिम आतिफ की फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। मुलजिमान SHO और AS ने थाने की CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी थी। SHO और ASI पर कत्ल के शवाहिद छुपाने का भी इल्जाम। अदालत ने मुलजिमान को 8 अगस्त तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। न्यू कराची में घर से 22 साला खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। जाबाक होने वाली खातून के वर्सा ने इल्जाम लगाया मकतूला को उसके शौहर ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। पुलिस का कहना है मुकदमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दर्ज होगा। इस्राइली वज़ीर आज़म का गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और पूरी गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू गजा में फौजी कार्रवाइयों को वुसअत देने पर गौर कर रहे हैं। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक इस मंसूबे में गजा के मुकम्मल इलाके पर कब्जे की कोशिशें शामिल हो सकती हैं। इस मंसूबे के हवाले से हतमी फैसला आज होने वाले काबीना इजलास में किया जाएगा।
صہیونی فورسز کی غزہ پر گولہ باری جاری، مزید 87 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 52 افراد ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اسرائیل کے بنائے قحط نے مزید 8 افراد کی جان لے لی، ایک بچہ بھی شامل۔ 94 بچوں سمیت 188 فلسطینی بھوک سے جاں بحق ہو چکے۔ غزہ جنگ میں اب تک 61,020 افراد شہید، 1,50,671 فلسطینی زخمی ہوئے۔ پیرس کی سڑکوں پر 50 سال سے زائد عرصے سے اخبار فروخت کرنے والے پاکستانی نژاد علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ سول اعزاز دینے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق 72 سال کے علی اکبر پیرس کے آخری اخبار فروش کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اب بھی سڑکوں پر اخبار بیچتے ہیں۔ علی اکبر کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے ستمبر میں علی اکبر کو نیشنل آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز فرانس میں سول یا عسکری خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ ایران میں 5.7 شدت کا خوفناک زلزلہ، کئی شہر لرز اٹھے، لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے، موبائل نیٹ ورک بھی متاثر۔ زلزلہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایران کے مختلف علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ مقامی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ طوفان فلاس نے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا، پروازیں، ٹرینیں، فیسٹیول سب بند۔ برطانیہ اور آئرلینڈ میں نظام زندگی بری طرح متاثر۔ شمالی انگلینڈ اور یارکشائر میں تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تفریحی مقامات بند کر دیے گئے۔ درخت گرنے اور سڑکوں پر رکاوٹوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں ایمبر اور یلو وارننگز جاری کر دی گئیں۔ ڈرائیورز کو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے اسٹالز سج گئے۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے لگا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم فٹنس مسائل کی وجہ سے رواما پولینڈ میں ہونے والی ڈائمنڈ لیگ سے باہر ہو گئے۔ جیولن تھروور ارشد ندیم ٹانک کے مسلز کی انجری کی وجہ سے صحت یاب نہ ہو سکے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کو ڈاکٹرز نے ڈائمنڈ لیگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ قومی ایتھلیٹ کی فٹنس سے بحالی کا پروگرام ڈاکٹر علی شیر باجوہ کی نگرانی میں انگلینڈ میں جاری ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق ارشد ندیم کی حالیہ انجری سنجیدہ نوعیت کی ہے، اس لیے رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 3 ملکی T20 سیریز کے دوران پاکستان اور افغانستان کے فینس کے لیے الگ انٹری اور انکلوژر رکھنے کا فیصلہ۔ UAE میں 3 ملکی سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے شائقین کو ایک دوسرے کے انکلوژر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچز 29 اگست اور 2 ستمبر کو شارجہ میں شیڈول ہیں۔